Hello everyone. Today we will be starting with the next chapter of history that deals with pastoralist in the modern world. But before starting with the chapter, let us look at the term. What does this term pastoralist means? Now we had heard of several other movement or several other types of people, particularly those who are living in certain regions, certain specific regions of India, and these people are basically nomadic in nature. Now what does nomads means? Nomads are those people who generally rear animals. Animals can be of any sort, right? Like they can rear sheep, they can rear goats, they can rear camels. So there are certain particular sections of people who rear animals. Now when you rear animals and if you are located at a certain specific place, you need to move according to the needs of the animals. Your movement does not simply restrict to your own needs, but it at the same time means that you have to move according to the needs of the animals to fulfill them, right? अब ये जो pastoral communities हैं या ये जो pastoralist हैं जिनकी हम इस chapter के अंदर बात करेंगे, these are also people who lead a nomadic life, means they wander from one place to another, are wanderers first. Second, they also rear animals. Animals में हम cattle, goat, sheep, camels के बारे में पढ़ेंगे mainly, buffaloes के बारे में पढ़ेंगे. ये जो एनिमल रियरिंग कर रहे हैं, इस एनिमल रियरिंग से इन्होंने अपनी ऑक्यूपेशन भी अटैच कर रखी है. तो ऐसे लोग जो कि नोमैडिक इन नेचर हो और जो कि साथ में ऑक्यूपेशनल पर्पस की वजह से भी उन एनिमल्स को रियर कर रहे हो, सच पीपल और सच कम्युनिटीज आर टर्म्ड एज पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज, राइट. अब जब हम इन पैस्टोरलिस्ट की बात करते हैं तो हम मोस्टली नोमैडिक लोगों के बारे में पढ़ लेंगे, या फिर हम लोग को हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में वी डू नॉट फाइंड एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सच कम्युनिटीज. बट ऑन द अदर हैंड these communities hold a lot of weightage. अगर ये communities exist ना करें तो many of the commodities that we use in our everyday life, for example just say to protect ourselves, in winters we need to cover ourselves with sweaters, we need to cover ourselves with blankets. अगर ये communities exist ना करें तो ये daily essentials और ये daily commodities भी exist नहीं करेंगी, right? So for this purpose these communities hold a lot of weightage. Now when we start reading these communities, we will read it in step by step. Like we will first start with the communities which exist in the mountain regions, in hilly regions. अब hilly regions के अंदर, plateaus के अंदर, desert के अंदर आपको अलग अलग टाइप की कम्युनिटीज़ मिलेंगी. ये आप बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो विद द कॉन्सेप्ट कि जैसे हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, तो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. जैसी वेजिटेशन होगी वैसी ही उस जगह की वाइल्ड लाइफ होगी, और जैसी वाइल्ड लाइफ है वैसी ही उस जगह की वेजिटेशन होगी, वाइस वर्सा, बोथ इज ट्रू, राइट. अब जब हम यहाँ पर हिली रीजन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि जब हिली रीजन्स है तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस विल बी डिफरेंट फ्रॉम दोज विच एग्जिस्ट इन द डेजर्ट रीजन. तो वहाँ पर एनिमल रियरिंग भी उस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ही होगी. लाइक जब हम माउंटेनियस रीजन की बात करेंगे तो माउंटेनियस रीजन में हमें दो जगह की कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ना है. मेनली फर्स्ट इज बेस्ड ऑन जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर में कौन सी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, पैस्टोरल. और दूसरी हम हिमाचल प्रदेश की कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं जो एग्जिस्ट करती है. जब हम प्लेट्यू वाले रीजन पर आएंगे तो प्लेट्यू वाले रीजन में महाराष्ट्र वाले रीजन के बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ पर ढांगर्स नाम की कम्युनिटी है जो एग्जिस्ट करती है महाराष्ट्र के अंदर, which are mainly rearing animals for the purpose, and mostly the animals reared are those even that of buffalo. buffalo तक के animals को rear भी किया जाता है. And henceforth then we move on to places like Rajasthan, which is a desert region, semi arid region. और इस arid region में mainly जो animals rear करने वाली community है that is Maru Raikas.
एंड दे आर रियरिंग कैमल्स, कैमल्स को रेयर कर रहे हैं। जनरली हम राजस्थान के अंदर कैमल्स के फेस्टिवल से रिलेटेड भी इवेंट्स और एक्टिविटीज़ नोटिस कर सकते हैं दैट देयर आर मेनी इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन फॉर सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ कैमल्स। अब हम तीनों जगह पर जहाँ पर मूव कर रहे हैं, चाहे हम माउंटेनियस रीजन में बात करें तो माउंटेन के अंदर ऑब्वियसली कैमल कैन नॉट सर्वाइव, तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ या यहाँ के एनिमल रियरिंग यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग बेस्ड होगा। राजस्थान में राजस्थान के अकॉर्डिंग और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग द क्लाइमेटिक अडेप्टेशन टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, राइट। वी स्टार्ट विद द फर्स्ट रीजन दैट इज द माउंटेनियस रीजन। अब जो माउंटेनियस रीजन है उसमें हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें दो पार्ट्स पढ़ने हैं, हमें एक जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ना है और दूसरा हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो वी स्टार्ट विद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो पैस्टोरल कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है वो पैस्टोरल कम्युनिटी है ऑफ गुजर बकरवाल्स। दे आर कॉल्ड एज गुजर बकरवाल्स एंड दिस कम्युनिटी एग्जिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। नाउ दीज कम्युनिटीज़, हम जैसा कि जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशंस मोस्टली ठंड के टाइम पर, विंटर्स के टाइम में एक्सट्रीमली कोल्ड है। एक्सट्रीमली कोल्ड होने के साथ साथ द एरिया इज मोस्टली कवर्ड विद स्नो। अब जब स्नो से कवर्ड है तो ह्यूमन बींग्स कैन मैनेज समहाउ, बट दोज कम्युनिटीज विच आर रियरिंग शीप, गोट, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टे देयर। उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ठंड का समय वहाँ पर बिताना। द रीज़न, सारी चीज़ों पर जब स्नो कवर्ड हो जाएगी तो ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ऑन व्हाट बुगियाल्स विल दीज एनिमल्स फीड? देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर दीज एनिमल्स टू ईट, हेंस दे स्टार्ट देयर मूवमेंट बाय द एंड ऑफ सेप्टेम्बर। मतलब जैसे जैसे ठंड अप्रोच कर रही होती है एंड एज द टेम्परेचर गोज डाउन, ड्रिप्स डाउन, these communities start their movement। और मूवमेंट कहाँ करते हैं ये लोग? हिमालयन या माउंटेन रेंजेस से, जैसे कि पीर पंजाल रेंज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट रेंजेस, ऐसी रेंजेस को क्रॉस करके और ये लोग कहाँ पर आते हैं? शिवालिक्स के जनरली फुट हिल्स पर आना स्टार्ट कर जाते हैं। अब हालांकि अगर हम ओवरऑल एक क्लाइमेटिक चेंज देखें तो हम इनको बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर भी नहीं भेज सकते, पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इन लोगों को नीचे भेजना ज़रूरी होता है जस्ट टू प्रोवाइड देम ग्रेजिंग ग्राउंड। ग्रेजिंग ग्राउंड के लिए ज़रूरी है कि डाउनवर्ड मूवमेंट अपना स्टार्ट करें और ग्रेज करने के लिए जो घास चाहिए या वॉटेवर ऑन विच दे आर रिलाइड, ऑन वॉटेवर थिंग्स दे रिलाई, उन सभी चीज़ों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम में सनलाइट चाहिए होती है टू ग्रो। तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो डेफिनेट सी बात है कि ऑल द क्रॉप्स विल बी डिस्ट्रॉयड एट द सेम टाइम ड्यू टू स्नो। तो ये लोग जो अपना डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ये डाउनवर्ड मूवमेंट बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनिमल्स जस्ट टू गिव देम फॉडर, फूड एंड फॉडर, वो इसीलिए अपना माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो इनके साथ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड है दैट इज ऑफ माइग्रेशन, यानी मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नोमैडिक है नेचर में तो डेफिनेटली एक से दूसरी जगह पर मूव करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब विंटर्स के टाइम पर ये मूवमेंट होना स्टार्ट होता है, विंटर्स से लेकर एंड टिल द समर इज अप्रोचिंग, जैसे क्लाइमेटिक चेंज होना स्टार्ट होता है टिल मार्च दे स्टे देयर, यानी सितंबर से स्टार्ट करते हैं मूवमेंट, इट टेक्स अबाउट अ मंथ टू रीच देयर। अक्टूबर से लेकर और आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर के मार्च तक ये एक जगह पर स्टे करते हैं। मार्च के बाद अप्रैल ऑनवर्ड्स दे अगेन स्टार्ट देयर मूवमेंट अपवर्ड्स। क्यों? क्योंकि एनिमल्स अब उस क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड नहीं है। तो बाय द स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल एंड एंड ऑफ मार्च दे स्टार्ट देयर मूवमेंट अपवर्ड्स। अब जब ये अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो ये कोई एक दो तीन लोग नहीं होते, द कंप्लीट फैमिलीज टू फैमिलीज मूव इन अ सर्टन स्पेसिफिक एरिया। पूरी की पूरी फैमिलीज माइग्रेट होती हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ फैमिलीज दैट मूव टुगेदर एंड दीज फैमिलीज दैट आर मूविंग टुगेदर आर नोन एज काफिला, means a long chain of people follow, so they never move alone,
One or two families won't move in alone. All those who are rearing these animals have to move in a row and generally move in these rows. And September तक ये लोग move करते हैं और अपना वापस से movement April तक start कर देते हैं, starting of April. Alright, moving on to the next community that we have. The next community in this region you will find is of Gaddi shepherds, and this community is of Himachal Pradesh. ये हिमाचल प्रदेश की कम्युनिटी है जिसको हम गद्दी शेफर्ड्स बोलते हैं. इनकी मेनली ऑक्यूपेशन है that they are blanket weavers and mainly rear sheep. अब जब आपको शीप से वूल एक्सट्रैक्ट करना होता है तो उस वूल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इट रिक्वायर्स कि वो जो शीप का वूल है इट स्टार्ट स्वेलिंग, फूलना स्टार्ट होना चाहिए. तो ये जो गद्दी शेफर्ड्स हैं हिमाचल प्रदेश के, इनका मूवमेंट ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इनको शीप से वूल एक्सट्रैक्ट करना होता है एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग wool from the sheep is called as shearing. इस प्रोसेस को बोला जाता है shearing. और इनको भी मूवमेंट कहाँ से कहाँ करना होता है, हिमाचल प्रदेश से इनको साउथवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करना होता है. अब देयर इज ऑल्सो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब ये लोग शेयरिंग के लिए जगह जगह पर रुकते हैं तो टू प्लेसेस आर फेमस वेयर दे टेक स्टॉप्स. दो जगह फेमस है हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर ये अपने स्टॉप्स लेते हैं. एक लाहौर और स्पीति. लाहौर और स्पीति वैली इन दोनों स्टॉप्स के लिए फेमस हैं जहाँ पर इन लोगों ने टेम्पररी बेसिस पर अपने घर बना रखे हैं जहाँ पर दे टेक शेल्टर. सो दीज टेम्पररी होम्स वेयर these communities take shelter and profess occupation, temporary shelters, these are called as mandaps. एंड बेसिकली जब ये अपना डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं तो इनका जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट इसी पर्पस के लिए किया जाता है. ठीक, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कम्युनिटी दैट वी हैव. हमारे को ईस्टर्न साइड पर, जो ईस्टर्न साइड है उस ईस्टर्न साइड पर हमको जो कम्युनिटी मिलेगी दे आर बेसिकली यानी कि गढ़वाल एंड कुमाऊन रीजन के अंदर हमको जो कम्युनिटी मिलेगी दैट कम्युनिटी विल बी कॉल्ड एज गुजर कैटल हर्डर्स. उनको बोला जाता है गुजर कैटल हर्डर्स. ये जो गुजर कैटल हर्डर्स हैं ये लोग भी मूव करते हैं और मूव करने का बेसिक पर्पस वही होता है कि इनको अपनी कैटल्स को ग्रेज कराना होता है. द एरियाज इन विच दीज कैटल्स ग्रेज, in which kettles graze are called as बुग्याल्स. ये कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होनी चाहिए. जैसे मैंने आपको प्रोसेस ऑफ शेयरिंग बताया,
जैसे मंडप्स के बारे में, एंड दीज आर ग्रेजिंग ग्राउंड्स आर कॉल्ड एज बुग्याल्स। एंड दिस साइक्लिक मूवमेंट, ये साइक्लिक मूवमेंट और भी कम्युनिटीज़ हैं जिनका चलता रहता है। हमने यहाँ पर सिर्फ 2-3 कम्युनिटीज़ पढ़ी हैं। माउंटेनियस रीजन से और भी छोटे लेवल्स की कम्युनिटीज़ हैं, जैसे वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ भोटियाज एज अ कम्युनिटी विच मूव इन। देन वी हैव एग्जाम्पल of you can see Sherpas and Kinauris which are moving in a cyclic movement, that is from winter to summer, from winter to summer, from winter to summer. And this type of cyclic movement is responsible for the basic fulfilling the needs of their animals and the cattle or whatsoever animal they rear. Now moving on further, in the plateau region, now this is an important topic. In the plateau region, we will start with in the plateau region. We will speak of the community which is in Maharashtra, the plateau region of Maharashtra, that is the central plateau region, and this Maharashtra community is known as Dhangars. इस कम्युनिटी का नाम है ढांगर्स। इनकी जो इस पैस्टोरल कम्युनिटी की जो पूरे महाराष्ट्र में अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन है, दैट इज अबाउट 4,67,000 पीपल। अब ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी एनिमल्स को जब रेयर करती है तो मोस्टली जो प्लेट्यू वाला रीजन है, वो प्लेट्यू वाला रीजन बारिश बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करता, एंड दिस रीजन इज मोस्टली ड्राई। इनका मूवमेंट ठंड और गर्मी की वजह से नहीं है, देयर मूवमेंट इज बेस्ड ऑन रेन। मूवमेंट इज बेस्ड ऑन मॉनसून, यानी बेसिकली अराइवल एंड विड्रॉल। इनका जो मूवमेंट है, इनका मूवमेंट मॉनसून के अराइवल और विड्रॉल से रिलेटेड है। अब ये जो कम्युनिटी जानवरों को रेयर करती है, इसमें से सिर्फ एक ऐसा एनिमल्स की कैटेगरी है, दैट इज बफेलो, जो कि वेट स्वैम्पी मार्शी लैंड को पसंद करती है। अदरवाइज ऑल द अदर एनिमल्स डू नॉट लाइक दैट वेट स्वैम्पी टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, अब इनमें से सारे मोस्ट ऑफ देम, जैसे इनकी ऑक्यूपेशन भी, मोस्ट ऑफ देम जो हैं ये लोग भी ब्लैंकेट वीवर्स हैं, शेफर्ड्स हैं। तो इनकी ऑक्यूपेशन भी जनरली ब्लैंकेट वीविंग से और शेफर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, अब क्या होता है, जब इसका सेंट्रल प्लेट्यू जो है महाराष्ट्र का, मॉनसून के टाइम पर लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेमी एरिड रहता है और विथ लो रेनफॉल पैटर्न अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये मोस्टली कवर्ड है विथ थॉर्नी स्क्रब। अब जो थॉर्नी स्क्रब है दैट कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स। तो ये लोग जब मूव करते हैं तो ये लोग किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? ये लोग जनरली कोंकण कोस्ट की तरफ अपना मूवमेंट करते हैं। आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में ये पढ़ चुके हैं कि कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ये वाली जो कोस्ट है जो कि अपन इंडिया की वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप के नाम से जानते हैं, तो महाराष्ट्र से नियर बाय है। तो ये लोग अपने एनिमल्स के साथ कहाँ पर मूव करते हैं? कोंकण कोस्ट की तरफ मूव करते हैं। जब ये कोंकण पहुँचते हैं, दैट इज द टाइम अप्रॉक्सीमेटली सितंबर टू अक्टूबर, इस टाइम का महीना रहता है। जब ये पहुँचते हैं
तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेलकम्ड बाय कोंकणी पीपल, इन लोगों को वेलकम किया जाता है एनिमल्स के साथ। फार्म एरिया है वहाँ पर वो सब जगह पर आपको स्टबल मिलेगा। अब वो जो स्टबल है वो स्टबल कंज्यूम किया जाता है बाय दीज एनिमल्स, एंड जब जैसे ही वो एनिमल्स उसको स्टबल को कंज्यूम करते हैं, स्टबल बेसिकली लेफ्ट आउट पार्ट है, स्टबल हम बोलते हैं जो लेफ्ट आउट पार्ट रह गया, क्रॉप्स आपने हार्वेस्ट के बाद जब निकाल ली खेतों से तो उसके बाद उनकी छोटी छोटी सी ठूंठ आप कह सकते हो या स्टबल रह जाती है, वो इन एनिमल्स के लिए फॉडर का काम करती है जो महाराष्ट्र से मूव करके आए हैं। अब जब वो स्टबल कंज्यूम हो जाते हैं तो खेत बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं एंड नाउ दे आर रेडी फॉर द नेक्स्ट सीजन। नेक्स्ट सीजन की अब खेती करी जा सकती है, दैट मीन्स खरीफ सीजन के एंड में ये लोग पहुंचते हैं और व्हेन दे कंज्यूम दिस स्टबल तो रबी सीजन आने का टाइम हो जाता है। सो देयर फील्ड्स बिकम्स एब्सोल्युटली fertile and ready for the next cultivation season. So जब ये लोग मूव करते हैं, इनका जब ये वाला टाइम खत्म हो जाता है, मॉनसून जब विड्रॉ कर रहा होता है तो मॉनसून के विड्रॉल के साथ इनका भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इन रिटर्न जो पीजेंट जो यहाँ के फार्मर्स होते हैं, कोंकणी फार्मर्स, वो इनको इन रिटर्न में द एरिया इज रिच फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस, तो ये लोग return में just as a gesture, just as a form of gesture and something of a sort of return, they pack with them heaps of rice so that they could consume it whenever they reach their own place, right? So what do we see here? We see that these such communities are moving according to the needs of the animals. So we will here mention movement to the Konkani coast to consume the stubble. स्टबल को कंज्यूम करते हैं। Okay, moving on further, we have another community in Karnataka and Andhra Pradesh. The community is of Kurumas and Kurubas. जो नेक्स्ट कम्युनिटी है हमारे पास वो कुरुमास और कुरुबास की है, एंड दीज मेनली रेयर कैटल, गोट एंड शीप. Moving on further, we have certain other communities which are also like moving in the same way. We have some communities which are rearing buffalo, and the speciality is that prefer to stay in wet, swampy and marshy lands. इनका जो मूवमेंट है वो बफेलोज के साथ मूवमेंट ऐसा रहता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन बफेलोज प्रेफर टू स्टे इन द वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स, राइट.
Now we have some communities which are found in Uttar Pradesh, Punjab and parts of Rajasthan. Such communities no doubt also rear cattle, but the particular communities famous for rearing of camels is known as, particularly the communities which are found in Rajasthan are known as Raikas, and those who rear camels are known as Maru Raikas. Maru refers to the desert region. In Rajasthan, जो cattle and other animals को rear करते हैं, those are known as simply Raikas, and those who rear camels are known as Maru Raikas. Camels के लिए generally camel festivals organize होते हैं, from where you can sell and purchase those animals. तो कैमल्स के लिए जनरली ये चीज़ होती है. ये लोग भी ड्यूरिंग द मंथ्स जब यहाँ पर गर्मी रहती है, कैमल्स जनरली प्रेफर टू स्टे इन वेयर देर इज़ हॉट समर्स. तो जो बाड़मेर बीकानेर वाले जो एरियाज़ हैं राजस्थान के, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वहाँ पर उस टाइम पर दे प्रेफर टू स्टे इन देयर होम्स. और जिस टाइम पर मॉनसून का अराइवल हो रहा होता है या जिस टाइम पर क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं, तो ये उस टाइम पर अक्टूबर तक अप्रॉक्सीमेटली जब ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, उस टाइम पर एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड देयर इज़ ऑल्सो स्केसिटी ऑफ वाटर एंड पास्चर फॉर द एनिमल्स, देन दे स्टार्ट देयर मूवमेंट इन द अदर डायरेक्शन. So these animals are called as Maru Raikas. Moving on further, there are some difficulties which these communities go through. We find it very easy कि movement कर लेते होंगे, but there are certain difficulties which these communities are going through. जैसे सबसे पहली difficulty है deciding the number and size. कितने एनिमल्स को ले जाना है, कितने एनिमल्स जा सकते हैं. दे ऑल्सो नीड टू मेंटेन गुड रिलेशंस at the places they stay. जितनी जगह पर ये लोग रुकते हैं मंडप्स के अंदर या वॉट एवर टेम्पररी शेल्टर्स के अंदर, जितनी जगह पर ये कम्युनिटी स्टे करती हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि जहाँ पर ये स्टे कर रहे हैं वहाँ पर इनके रिलेशंस उन लोकल लोगों से अच्छे होने चाहिए. अदर इज डिसाइडिंग द फिक्स टाइम. That is for how long to stay. This is an important aspect that they have to decide for how long to make an animal stay at a particular place, right? And moreover, for earning
फॉर अर्निंग अ लिविंग इन लोगों को इस नोमैडिक कल्चर को पैस्टोरलिज्म से कंबाइन करना पड़ेगा. ओनली देन दे कैन स्टार्ट अर्निंग बाय rearing these animals. So we end our lecture today here with the difficulties faced. We will move on to the impact of colonial rule in the next lecture. Thank you so much.